Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in the last class we have seen the softwares and there we have read about the system software. System software के बारे में क्लास 3 की बुक से हमने देखा. तो हमें पता चला कि system software are those software that is the first software that we installed in our computer. Fine. अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी क्या किया है ना, 2 और 3 पार्ट्स में बांट दिया. पहले जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया या उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस रीड इट फ्रॉम योर बुक. So the system software is a computer software that is designed to operate the computer hardware and to give and maintain a platform for the running the application software. It helps in running the computer hardware and the computer system. It helps in running the computer hardware and the computer system. So the system software or the software ये डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए. ठीक है, ये इसका डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए, बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट कराने के लिए. एंड इट हार्डवेयर एंड टू गिव एंड मेंटेन अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इट हेल्प्स इन रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. नाउ द सिस्टम सॉफ्टवेयर Okay. Now the system software is the interface between the user and the application software and the hardware such as printer, scanner, monitor and the keyboard. अभी क्या the system software is what? System software के बारे में क्या mention किया गया है? System software के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि system software is the interface. It's a what? Well, system software is a it's a interface. System software is the interface between the user. It is the interface between the user and the application software and the hardware such as printer, scanner, monitor, keyboard. And what? And the hardware such as printer, scanner, monitor and the keyboard. For example, when a user देखो कल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था that application software are the software which are used for what? Application software are the software that is used to perform an specific function. कोई specific function अगर हमने करना है, so what do we use? We use application software. ठीक है, application software का use हम कब करते हैं? When we have to perform any specific function. ठीक है. Now, for example, MS Excel, MS Word, Logo, PowerPoint. अब ये सारे क्या है? These are the application software. इन्हें हम क्या कहते हैं? We call them as application software. ये सारे application software हैं. So system software is the interface between the user and the application software and the hardware such as printer, scanner, monitor, keyboard, etc. ठीक है? Okay. For example, when a user instructs the application software to print a document, the application software sends the print instruction to the system software, which in turn sends the print instruction to the related hardware. क्या बोल रहा है? For example, when a user instructs the application software to print a document, अब जैसे user ने क्या किया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई डॉक्यूमेंट प्रिंट करो. तो अब क्या होगा? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेंड द प्रिंट इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके पास जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है. ठीक है. अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वो हार्डवेयर को कमांड देगा. हार्डवेयर इज व्हाट? योर प्रिंटर. ये उस क्या करेगा? ये उसको कमांड देगा. क्या कमांड देगा? टू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट. ठीक है. ये क्या करेगा? ये हार्डवेयर को कमांड देगा टू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यूजर इंस्ट्रक्ट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. अब यूजर ने क्या किया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हिंट किया कि क्या करना है? प्रिंट करना है. एप्लीकेशन को क्या, किसी डॉक्यूमेंट को क्या करना है? प्रिंट करना है. तो अब यूजर ने
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट किया कि आई वांट टू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, सपोज करो इफ आई एम वर्किंग ऑन वर्ड पैड, तो मैंने वर्ड को बोला मैं वर्ड पे काम कर रही हूँ, तो मैंने वर्ड पैड पे इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आई वांट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स, मुझे डॉक्यूमेंट क्या करना है, आई एम सॉरी, मुझे डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब जो वर्ड पैड है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो किसके पास आएगा, वर्ड पैड जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अब आएगा, वर्ड पैड जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसके पास आएगा, वर्ड पैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आएगा आपके हार्डवेयर के पास, नहीं सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, कि भाई प्रिंट का आदेश आया है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके पास जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर विल गो टू दिस थिंग, द नेक्स्ट वन दैट इज हार्डवेयर के पास जाएगा। ठीक है, so this is the difference between these three things। okay, अच्छा now the next is what I'm sorry, अभी देखो अगला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसको 3 टाइप में बांट दिया। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर एंड द अदर थिंग इज यूटिलिटी। ठीक है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड द यूटिलिटी। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में क्या कर दिया है, उसे बांट दिया है। Got it? Okay. Now the next thing that we have to read is operating system। ठीक है, अभी जो अगला पॉइंट हमने पढ़ना है वो हमने किसके बारे में पढ़ना है, we have to read about the operating system। Fine. So operating system को भी I am going to open this class 3 book। ठीक है, class 3 की बुक से I am going to explain you about the operating system। Oh, let me open the book। See why I always switch to class 3 book or class 4 book, because these books are easy and यहाँ पे हमारे लिए concept को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, okay, so this is the computer software। now application software और the system software। अब now देखो application software कल हमने देख लिया था। now the next is system software। एक बार system software देख लेते हैं और उसके बाद फिर we will move toward the operating system। ठीक है, then we will move toward the operating system। now देखो, system software is a type of software that controls and manages the overall activities of a computer system। system software, what it does, it is a type of software। system software is what, system software is a type of software that controls and manages the overall activities of computer system। It controls and manages the overall activities of what, of a computer system। Therefore a system software is like a manager of a computer system। Therefore what, सिस्टम से क्या होता है, एक मैनेजर के तौर पर, जैसे एक मैनेजर किसी स्टोर की, किसी एक यूनिट की पूरी देखभाल करता है, सिमिलरली व्हाट हैपन, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मैनेजर की तरह एक्ट करके ये सारे काम करता है। इट ऑपरेट्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन एंड एंश्योर दैट योर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस प्रॉपरली। It operates from behind the scene and ensure that your computer system functions properly। It also runs the application software। Operating system is a part of the system software।
Okay, now. So, ऑपरेटिंग सिस्टम इज वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज व्हाट, इट्स लाइक अ मैनेजर। जैसे मैनेजर एक किसी यूनिट की पूरी देखभाल करता है, सिमिलरली व्हाट हैपन, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के सारे काम को क्या करता है, मैनेज करता है। नाउ हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम। वी हैव टू रीड अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर एंड द यूजर के बीच में क्या होता है, कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एक ब्रिज की तरह क्या काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। ओके, नाउ ब्रिज की तरह कैसे, क्योंकि जिस तरह से एक ब्रिज क्या करती है, रिवर के दो साइड्स को जोड़ती है, सिमिलरली यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या बनते हैं, एक लिंक बनाते हैं। यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या बनते हैं, बनाते हैं एक लिंक सा ये बनाते हैं। Okay. Now a computer is useless without the operating system. Computer is what? A computer is useless. Computer क्या है? Computer is useless जब तक उसमें क्या हो, कंप्यूटर यूजलेस है जब तक उसमें विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज यूजलेस। ओके, for example, if you have a car which has petrol engine wheels, but if there is no driver to drive the car cannot move on its own. कार क्या नहीं होगी, कार अपने आप मूव नहीं करेगी जब तक कार में ड्राइवर ना हो। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम इट एक्ट एज अ ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस कार के ड्राइवर के तौर पे काम करती है। ठीक है, देखो अगर आपके पास एक कार है जिसमें कि इफ यू आर हैविंग द पेट्रोल ऑल्सो, द इंजन ऑल्सो, व्हील ऑल्सो, बट इफ यू डोंट हैव द ड्राइवर, हाउ कम द कार विल मूव, हाउ कम द कार विल मूव। सेम थिंग हैपन्स हियर विथ कंप्यूटर ऑल्सो। कंप्यूटर में भी क्या होता है, सेम थिंग हैपन्स। कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, यू कैनॉट यूज कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, द ड्राइवर एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ कार, so an operating system is must to work with computer. Fine. Now let us move toward the your book and then we will move here. Operating system, chalo bhai. So an operating system or OS is a software that enables a computer to work. It enables a computer for what? To work. This is the first software to be loaded in a computer. This is what? This is the first software that is required to be loaded in a computer. The operating system recognizes input from an input devices such as the keyboard, mouse, microphone or the PC camera. Coordinate the display of an output on the, देखो क्या क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू बी लोडेड इन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि अभी हमने क्लास 3 वाली बुक से भी देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी द फर्स्ट software to be loaded in a computer. The operating system recognizes input from the input devices from an input devices such as the keyboard, mouse, microphone, PC and keyboard. ठीक है, coordinate the display of output on the monitor, instruct the printer how to print, when to print। देखो प्रिंटर को बताती है कि कब प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एंड मैनेजेस द डेटा इंस्ट्रक्शन इन अ मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क। द ऑपरेटिंग सिस्टम resides in the computer hard disk. When you turn a computer on, it gets loaded into the primary memory, that is the RAM। ठीक है,
जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहती है, हार्ड डिस्क में। और व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो, व्हाट हैपन, whenever you turn on your computer, it get loaded into the primary memory. Primary memory means कहाँ, RAM में. Got it? So an operating system or OS is a software. Operating system or OS क्या है? It's a software that enables a computer system to work. This is the first software to be loaded in a computer. ये क्या है? फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर में क्या किया जाता है, लोड किया जा रहा है. ठीक है. द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइजेस input from an input device. Operating system recognizes input from an input device such as the keyboard, mouse, microphone और PC camera. ओके. अभी हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ड्राइवर, मतलब जिस तरह से एक गाड़ी को, एक किसी गाड़ी को जैसा हमें पता चला कि जिस तरह किसी एक गाड़ी को चलाने का काम किसका होता है, किसी एक गाड़ी को चलाने का काम होता है आई एम सॉरी, जिस तरह से किसी गाड़ी को चलाने का काम ड्राइवर का होता है, मतलब पेट्रोल और बाकी चीज़ें उसमें होके भी वो गाड़ी नहीं चलेगी जब तक उसमें एक ड्राइवर नहीं हो सकता. ठीक है. जब तक उसमें एक ड्राइवर नहीं होगा वो गाड़ी नहीं चल पाएगी. सेम थिंग हैपन्स हियर इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. सेम थिंग हैपन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. ओके. ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या चीजें होती हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपन, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जो कि एक मैनेजर करता है अपने. मैनेजर वो जो सारे काम करता है एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसे ही सारे काम आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. यू गॉट इट? ओके. नाउ moving ahead with the things. Now the next thing, functions of an operating system. एक operating system के क्या क्या function होते हैं. So let us read it from let us read it from class 3 book. Now functions of an operating system. Now what is written here? An operating system control, process and approves everything that happens on your computer. What it does? An operating system control, process and approves everything that happens on your computer, such as controlling hardware. An operating system controls all the part of a computer system and enables them to work properly. What it does? It enables the computer, it enables the hardware to work properly. You got it? Okay. Now moving ahead. Next is रनिंग सॉफ्टवेयर. अब देखो हार्डवेयर को चलाने का तो काम है ही, साथ में क्या काम है इनका, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और जो काम होता है वो ये कि इट हेल्प्स इन रनिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी वर्क कराने का काम होता है इनका. ओके. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स An operating system runs the application software such as MS Word, MS Paint, logo, games, etc. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है जैसे कि MS Word, MS Paint, logo and games etc. Fine. Okay. Now let us read ahead.
Now moving ahead, next we are having types of software. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, but again I am going to repeat that there are basically two types of software. There are two types of software: application software and system software. So there are two types of software: application and system software. Now, application software, the software that perform a specific task for the user are known as application software. So the software that perform a specific task for the user are known as application software. Application software are those software that perform the specific task. These software help you in doing some specific type of work. For example, we use MS Paint to make a drawing. What happened? We use MS Paint to make a drawing, but we cannot do calculation using MS Paint. MS Paint में हम क्या नहीं कर सकते? We cannot do the calculation. Okay, so these software help us in doing some specific type of work. For example, we use MS Paint to make a drawing, but we cannot do calculation using MS Paint. ठीक है, तो देखो application software मैंने पहले भी आपको बताया है, these are work oriented. Work oriented मतलब इनका जो काम होगा ये वही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इरेजर से, आपका जो इरेजर होता है उससे आप लिख नहीं सकते, है ना, उसके लिए आपको लिखने के लिए यू यूज पेंसिल और पेन. इरेजर से आप लिख नहीं सकते. तो आप कहने का मतलब क्या, जब आप इरेजर से लिख नहीं सकते तो इरेजर का फंक्शन क्या है? इरेजर का फंक्शन है किसी चीज को इरेज करना. इरेजर का फंक्शन है किसी चीज को इरेज करना. ठीक है, एंड ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट पेंसिल. अब पेंसिल का फंक्शन इज व्हाट? पेंसिल का फंक्शन है किसी चीज को क्या करना, किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ड, किसी लेटर को क्या करते हो पेंसिल की हेल्प से? आप लिखते हो. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेंसिल एंड इरेजर. दोनों का अपना फंक्शन है. सिमिलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे कैलकुलेटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वाई देखो, अब रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि कैलकुलेटर के हेल्प से आप मीटिंग नहीं कर सकते, कैलकुलेटर की हेल्प से आप वर्ड फाइल नहीं बना सकते, है ना. तो कैलकुलेटर का अपना फंक्शन है. सी, कैलकुलेटर से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर से आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड helps you to create document with ease and efficiency. अब अगला है कि कौन कौन से टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें दिया है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. फर्स्ट एग्जांपल जो इन्होंने दिया है इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नाउ व्हाट इज हियर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विथ ईज एंड एफिशिएंसी. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प करता है आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना विथ ईज एंड एफिशिएंसी. Now, next is Microsoft Excel. Microsoft Excel helps you to perform calculation and store the data in tabular form. अब जैसे Word help करता है to create any document, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट क्या करने में, क्रिएट करने में, तो Microsoft Excel हेल्प करता है उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में बनाने में, है ना. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज MS Paint. अगला ऑप्शन इज व्हाट? MS Paint. MS Paint helps us to work with the graphics. It helps you to work with the graphics. You can draw and paint with this software. MS Paint help you to draw and paint with graphics. Okay. ठीक है, अब जैसे अभी हमने MS Paint भी पढ़ा था ना, तो what happen in MS Paint? MS पेंट में हम क्या कर पा रहे थे, हम कई सारी ड्राइंग्स कर पा रहे थे ना. इन MS पेंट हम क्या कर पा रहे थे, कई तरह की ड्राइंग कर पा रहे थे, है ना. तो सी दिस ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब MS पेंट की हेल्प से हम
कॉल नहीं कर सकते किसी चीज को ना, किसी को कॉल नहीं कर सकते, वी कैन ओनली ड्रॉ, क्योंकि उसका वही उसका फंक्शन क्या है, टू कोई स्पेसिफिक काम करना ही उसका फंक्शन है। अच्छा, next is logo. So logo is basically the next program that we have to read. Logo is what? Logo is a software program used to draw different shapes and figure using different command. Logo is what? Logo is a software program used to draw different shapes and figure using different command. You can use it to do simple calculation. आप क्या कर सकते हो, लोगों का यूज आप कर सकते हो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए भी। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो ये तो हो गई बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब अगला वी आर हैविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is a type of software that controls and manages the overall activities of a computer. What happens? System software is a software that manages and controls the overall activity of the computer system. So I was telling you that system software act as a manager of a computer system. ठीक है, it operates from behind the scene and ensure that your computer system functions properly. It operates from the behind the scene and ensure that your computer system functions properly. It also runs the application software. Operating system is a part of system software. देखो operating system is what? Operating system is a part of system software. Now, operating system is a software which acts as a bridge between the user and the computer system. Operating system क्या है? It's a software which acts as a bridge between the user and computer software. It is the first software which has to be installed on the computer. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कराने की जरूरत होती है ना। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ अ वेरी गुड लाइन इज गिवन that suppose if you have a car which has petrol engine wheel, but if there is no driver to drive the car cannot move on its own from one place to another. The driver act as an operating system for a car. So what happened? Driver will act as an operating system. Driver किसकी तरफ? ड्राइवर एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपके पास एक कार है जिसमें पेट्रोल भी है, इंजन है, व्हील है, सब कुछ है, बट आपके पास क्या नहीं है? ड्राइवर नहीं है। तब वो कार कैसे चलेगी? व्हाट यू विल नीड टू मूव दैट कार? यू नीड अ ड्राइवर। तो सिमिलरली आपके पास लैपटॉप है, ब्लूटूथ कनेक्शन है, इंटरनेट है, बट अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आपका लैपटॉप क्या हो सकता है? नहीं चल सकता, आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। A computer is useless without the operating system. What happened? A computer is useless without the operating system. For example, if you have a car which has this तो I have explained you. Now कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? कंप्लीटली यूजलेस। नाउ द ड्राइवर एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ कार। जिस तरह से क्या होता है? ड्राइवर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार के लिए होता है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मस्ट टू वर्क विद द कंप्यूटर। सो यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम पॉजिटिवली to work with what? To work with computer. To work with computer, you need operating system positively. Okay. Now next is update your knowledge. So who is user? User or users are the person who communicate with a computer and use the information to generate by it. जैसे right now I am using my laptop, so I am user. मैं कौन हूँ? I am user. ठीक है? So kids, today we have done up to here. Now we will meet in our next class to discuss further about the softwares.